नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। 26 नवंबर को हम मना रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे यानी कि संविधान दिवस, क्योंकि इस दिन 1949 में हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अपना संविधान अडॉप्ट किया था। देखिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि हमारी राइट्स का, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, हमारे अधिकारों का मूल है, फाउंडेशन है, कोर है। तो आइए जानते हैं हमारे देश के युवा से, कुछ स्टूडेंट्स से। अभी हम खड़े हुए हैं दिल्ली के हंसराज कॉलेज में और वहाँ के बच्चों से हम बात करके जानेंगे कि हमारे देश का युवा, हमारे देश के जो स्टूडेंट्स हैं वो कितना जानते हैं हमारे संविधान के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका नाम? सहज. ओके। सो आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन डे क्यों मनाया जाता है? Yes, because on that day, the Constitution by B.R. Ambedkar is like made, so that's why we make Constitution Day. Okay. What is the difference between Constitution Day and Republic Day? Basically, the difference between 26 November and 26 January. Basically, on 26 January, the Constitution of our India is adopted and is like made in action. But on 26 November, it is made and it is like published. Are you sure about your answer? 5 फंडामेंटल राइट्स बता दीजिए जल्दी से। Right against exploitation, right to freedom, right to equality, right to privacy. Which one is your personal favorite? I guess right to privacy, because in the digital era that we are living in, I think that privacy is the main thing that we want, and that right, I think that is my personal, because there are many cases that are arising due to that privacy invasion. That's why I like that right. Okay. You know, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट इज़ द कोर ऑफ आवर कंट्री। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही सब कुछ डिसाइड करता है। सो आपको क्या लगता है कि ऐसा एक कौन सा चेंज है जो आपके हिसाब से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आना चाहिए? The biggest change that I think that will be made in our constitution is that to make rules and regulations strict. Because as we know that there are many rules in our country, but there are very small group of people who are following that, and there are also many people in the system who are not following that rules, like police in anything like in the system. वन सेकेंड। इफ़ वी टॉक अबाउट रूल्स, उस पर काफ़ी सारे केसेस आ जाते हैं। डिस्क्रिमिनेशन के भी आ जाते हैं, एक्सप्लॉयटेशन के भी आ जाते हैं, सेक्सुअल ऑफेंसेस के भी केसेस आ जाते हैं। तो किस रेफरेंस में, क्योंकि इट कैन नॉट बी चेंज्ड ऑल टुगेदर, सो किस रेफरेंस में आपको लगता है कि हाँ, इस सेक्टर में, इस पर्टिकुलर सेक्टर में सबसे ज़्यादा चेंज की ज़रूरत है? I guess the biggest sector that I think is discrimination, because people take it casually in India, like discriminating people is like it's a normal thing, but that's not normal thing. There are many people who are suffering depression, who are suffering many kind of mental issues due to that thing only. And also apart from that, yeah, that sexual harassment that is arising in our country day by day. So that's the thing that I think that has to be looked out, and these are the things that I want that will be changed in our constitution to make that rules and regulation very strict, and those things have to be take action quickly. ओके। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? B.R. Ambedkar. उनकी एक बात, उनका एक थॉट जो आपको बहुत इंस्पायरिंग लगता हो? ओके, नो प्रॉब्लम। डू यू थिंक यूथ अपनी फंडामेंटल राइट्स की, तो हम बहुत बात करते हैं कि ठीक है, ये मेरा राइट है, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, दिस इज़ माई फंडामेंटल राइट, बट व्हेन इट कम्स टू ड्यूटीज़, डू यू थिंक दैट यूथ अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ अच्छे से निभा रहा है? There are many duties that the youth is not following in this era, and those duties I guess is like wastage, pollution, unnecessary use of resources. Like we can use one car, but the youth that are living in this era, they want more than one car for only show off. That's the thing that I think that has to be taken care as a national duty, because the resources that we are using is not for only us. We have to also look at sustainable development, and we have to also look at our future, means like future needs. So that's why I think we have to deplete our usage of resources, so that there is no unnecessary usage of resources. So that's the thing that I really. ओके, थैंक। व्हाट्स योर नेम? तनिष्का कुमार. ओके, सो डू यू नो आज 26 नवंबर को क्या स्पेशल है? Today we celebrate Constitutional Day. ओके। सो
कॉन्स्टिट्यूशन को सेलिब्रेट करने के लिए बेसिकली जो हमारा रिपब्लिक डे होता है वो होता है, मतलब जिस दिन हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, जिस दिन बहुत ज़्यादा बात होती है, तो ये 26 जनवरी और 26 नवंबर में डिफरेंस क्या है? On 26 January, we implemented the constitution to our India. Okay, and today we finalized. Okay, this rule has to be put on the constitutional. Today we finalized all those details. Okay, so one thing that you like the most about Indian constitution? That Indian constitution is, we all know it is the longest constitution in our world. So our country has provided every step of rules and regulation which is needed for a person to have. This is what I love the most, that every step is clear and crystal clear, that this is how it's supposed to be done, this is not to be done. In our constitution it is written very clearly. So this helps the general public a lot. Okay, so can you list 5 fundamental rights? We can say right to education, right to vote, and there are many more actually. Okay, आपके हिसाब से कौन सा आपका पर्सनल फेवरेट है? विच वन इज़ योर पर्सनल फेवरेट? कौन सा ऐसा राइट है? मुझे ऐसा लगता है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन बेस्ट है, बिकॉज आज की जनरेशन में एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. हमें पता है एवरी सिचुएशन लाइक डू यू थिंक राइट टू इन्फॉर्मेशन इज़ अ फंडामेंटल राइट? या आई डू थिंक अगर इन्फॉर्मेशन नहीं होगी वी कांट टेक एनी स्टेप्स एंड ऑल. अगर इन्फॉर्मेशन के बिना कोई भी चीज़ करना, वो चीज़ गलत हो सकती है. इवन अगर हम कुछ चीज़ कंज्यूम भी करें, वी नो दी इन्फॉर्मेशन कि वो चीज़ किस किस से बनी है, किस चीज़ से नहीं. तो राइट टू इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है जनरली. ओके, बेसिकली मेरा सवाल ये था कि क्या ये एक फंडामेंटल राइट है? लाइक इज इट मेंशन दैट राइट टू इन्फॉर्मेशन इज़ अ फंडामेंटल राइट? येस इट इज़. Okay. So, do you know who is the father of Indian Constitution? B.R. अम्बेडकर. Okay. उनकी एक बात, उनका एक थॉट जो आपको बहुत इंस्पायरिंग लगता हो? कि उन्होंने दलित कम्युनिटी को बहुत सपोर्ट करा था. उन्होंने एक तो इक्वालिटी को बहुत वो करा, जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है कि हमें किसी को ऐसे ऊंचा नीचा नहीं करना चाहिए. दैट्स व्हाट आई रियली लव अबाउट हिम. So today is 26th of November. आपको पता है आज क्या होता है? आई डोंट नो आज क्या है. Okay. So today is Constitution Day. Do you know anything about it? या एक्चुअली आई नो अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन. सो So Constitution Day और Republic Day में फ़र्क क्या होता है? Because Republic Day तो हम 26 जनवरी को मनाते हैं, Constitution Day हम आज यानी कि 26 नवंबर को मनाते हैं. फ़र्क क्या है दोनों में? आई थिंक हो सकता है आज कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया हो, दैट्स व्हाई. ओके, ठीक है. आप जानते हो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे कहा जाता है? या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर. ओके, सो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की एक बात, एक थॉट जो आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग लगता हो? आई थिंक द थॉट इज़ कि राइट टू इक्वालिटी, उन्होंने जिस पे ज़्यादा फोकस किया, एंड जो अपने यहाँ नीचे स्तर के लोग हैं जिन्हें जो इक्वालिटी नहीं मिलती है उस पर ज़्यादा फोकस करके उन्हें उठाया है वो, एंड रिजर्वेशन सिस्टम है ऑल्सो. ओके, डू यू नो कि बाबा साहब, जैसे आपने कहा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यानी कि B.R. अम्बेडकर जी का मेन जो फोकस था दैट वाज ऑन इक्वालिटी. ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ था उनकी लाइफ में जिसकी वजह से उनका जो पर्सनल कनेक्ट था इस राइट से, इस थॉट से बहुत ज़्यादा था? बेसिकली जब ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स थे. सो एक उनका फेमस इंसिडेंस है कि जब वे स्कूल में थे, सो उनको बाकी स्टूडेंट्स की तरह ट्रीट नहीं किया जाता था. बेसिकली सब ऊपर बैठते थे, लाइक ब्राह्मण के स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ते थे, एंड जो कुछ स्टूडेंट्स थे जो नीचे मतलब पिछली जाति के होते थे, तो उनको इतनी इक्वालिटी नहीं दे के उन्हें ज़मीन पे बिठाया जाता था. वो पढ़ने में बहुत अच्छे थे लेकिन फिर भी उनको इतना वैल्यू नहीं दिया जाता था, उनको हमेशा पीछे रखा जाता था. ये चीज़ सबसे ज़्यादा उनको मोटिवेट की, दैट्स व्हाई. ओके, हमारे 5 फंडामेंटल राइट्स के बारे में जल्दी से बता दो, कौन कौन से? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू चूज एनी रिलीजन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू रेमेडी, कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी. ओके, विच वन इज़ योर पर्सनल फेवरेट? Actually my personal favorite is right to choose any religion, and because every person have a right to choose any religion, and कहीं पे भी जा सकता है, वो किसी मंदिर जाए, मस्जिद जाए, उसके पास राइट है, उसे कोई रोक नहीं सकता. लेकिन कभी कभी आप ऐसा देख सकते हैं कि आज के समय में हिंदू मुस्लिम बहुत ज़्यादा हो रहा है, बिकॉज ये बेसिकली पॉलिटिशियंस की वजह से हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए. दैट्स वाई ये मेरी फेवरेट राइट है, बिकॉज आपके पास राइट है. मैं जैन मंदिर भी जा सकता हूँ, मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ, मैं मस्जिद भी जा सकता हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता. ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जो बेसिकली जब हम संविधान की बात करते हैं तो हमारा जो भारत, चाहे वो प्रेसिडेंट की पोस्ट हो, प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट हो, कुछ भी हो, हम कुछ भी करते हैं इंडिया में, दैट इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ऐसा कौन सा एक चेंज है आपके हिसाब से जो आपको लगता है कि हमारे संविधान में आना चाहिए, आपके हिसाब से, योर पर्सनल थॉट? मेरा तो यही थॉट है कि जैसे कि अभी जो हो रहा है कि रिलीजन के बेसिस पे आप पार्टीज़ बन रही है एंड कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ये बिल्कुल हटना चाहिए। बिकॉज इससे बिकॉज जो इंडिया एक डेमोक्रेटिक मतलब कंट्री है एंड यहाँ पे हर रिलीजन को एक इक्वलिटी दी जाती है, तो ये नहीं होना चाहिए जो बेसिकली हो रहा है कि डिफरेंट कास्ट के बेसिस पे लोगों को डिवाइड कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि बिकॉज सेकुलर है। मैं मुस्कान। Okay, so do you know what is the difference between 26 November and 26 January? Yes, ma'am. Ma'am, 26 November is celebrated as the Constitution Day, whereas 26 January is celebrated as Republic Day. The Constitution Day is celebrated because on this day we actually the Constitution was formed, and we have on 26 January it actually came into force. So, to mark in 2015, the government declared 26 November as the Constitution Day to mark the honor that on this day finally the Constitution was ready and we had the first Constitution of India. Okay, so आपके हिसाब से जो बेस्ट फंडामेंटल राइट है आपके हिसाब से, दे आर 5 फंडामेंटल राइट्स, पहले तो आप लिस्ट कर दीजिए उसे जल्दी से, और आपको बेस्ट कौन सी लगती है? Ma'am, right to equality, right against exploitation, cultural and educational rights, right to freedom of speech, and ma'am, according to me, like one of the best fundamental rights for me is right of freedom to speech and expression, because until and unless we don't have our freedom to express ourselves, we can't put forward our views, and whenever we have that freedom that we can speak whatever we wish to and whatever is going in our minds, then we have the full liberty to actually bring the change that we want in the our surroundings. ओके, सो हमारे संविधान में एक ऐसा कौन सा चेंज है जो आप लाना चाहोगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? मैम, अकॉर्डिंग टू मी अभी फ़िलहाल के लिए, बिकॉज बीइंग अ वुमेन, आई थिंक दैट विमेन राइट्स वैसे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी हैं, लेकिन स्टिल आई थिंक दैट देयर शुड बी मोर लॉज फॉर विमेन, सो दैट पीपल आर एक्चुअली स्केयर्ड दैट अगर इतने स्ट्रिक्ट लॉज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन्ड होंगे तो फिर लोग कुछ भी गलत करने से पहले बहुत बार सोचेंगे। तो आई थिंक कॉन्स्टिट्यूशन हमारी कंट्री का एक बहुत ही लीगल फ्रेमवर्क है जो हमारे को बहुत ज़्यादा एक सेट ऑफ गाइडलाइंस और रूल्स देता है। तो आई थिंक विमेन प्रोटेक्शन या चिल्ड्रन प्रोटेक्शन के लिए कुछ ऐसे लॉज या कुछ ऐसे रूल्स होने चाहिए जिनकी वजह से कोई भी अगर गलत काम अगर करने का सोचता भी है तो उसके खिलाफ इतने स्ट्रिक्ट लॉज हो, रूल्स हो कि वो ना सोचे। ओके, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, तो आपको उनकी एक ऐसी कौन सी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग लगती हो? मैम, इंक्लूसिविटी, the thing that actually brings our concentration and everything towards him is that he was always determined that there should be equality in the society. We all are born equal and there should be no discrimination on any of the basis. Whenever a child is born, he is not born on the basis of caste, color, creed or anything. So that is what he actually teaches us, that we should not discriminate on any of the basis and we should be clear enough that we all are born equal on this planet and we have equal rights to express ourselves. फंडामेंटल राइट्स तो ठीक है, बट साथ ही साथ फंडामेंटल ड्यूटीज़ की भी बात कही है। सो इफ़ यू टॉक अबाउट यूथ, सो डू यू थिंक यूथ अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो अच्छे से फुलफ़िल कर रहा है? If yes, then why? If no, then why? Ma'am, there are a lot of things that have been kept into the consideration. फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी इसीलिए ही लगाई गई थी क्योंकि अगर आपको राइट्स मिलती है तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में ड्यूटीज़ भी होनी चाहिए ताकि एक बैलेंस्ड लाइफ बनी रहे। हम ये देखते हैं कि राइट्स तो काफ़ी लोग अपने राइट्स के बारे में लड़ते हैं, लेकिन बहुत लोगों को ड्यूटीज़ के बारे में इतना नहीं पता है कि उनकी भी कुछ ड्यूटी बनती है नेशन के प्रति। तो आई थिंक दैट पीपल शुड बी मोर अवेयर ऑफ देयर ड्यूटीज़ अगर उन्हें राइट के बारे में अपने इतना पता है तो। लाइक हमारे नेशनल एंथम है, नेशनल फ्लैग है, इन सबको हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, ये सब हमारी नेशनल ड्यूटीज़ में मेंशन्ड है। तो आई थिंक इन ड्यूटीज़ को थोड़ा और अवेयरनेस लानी चाहिए ताकि लोगों को उनकी ड्यूटीज़ के बारे में भी उतना ही पता चले जितना राइट्स के बारे में पता है। जी, मेरा नाम मयंक शर्मा है
और मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ और मैं इसी हंसराज कॉलेज का छात्र हूँ। अच्छा, आज है 26 नवंबर, आज हम मना रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे यानी कि संविधान दिवस। क्या आपको पता है कि संविधान दिवस यानी कि 26 नवंबर और 26 जनवरी में फ़र्क क्या है? जी मैम, आज के दिन जो है हमारा संविधान को हमने अंगीकृत आत्मार्पित किया था और 26 जनवरी 1950 को हमने इसको कम्प्लीटली एनफोर्स करा है। तो मैम यही डिफरेंस है इन दोनों डेट्स के बीच में। आपके हिसाब से जो बेस्ट फंडामेंटल राइट है वो कौन सा है आपके लिए? Yes. Ma'am, according to me, the best fundamental right is Article 21, right to life and privacy, because ma'am, it has expanded the origins of a progressive society and dynamic constitutionalism. So, यू नो हम अभी बात कर रहे हैं इट इज़ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। लाइक हम कहीं ना कहीं हम कुछ भी कर रहे होते हैं, सो वी आर यूजिंग वन ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स। लेकिन ऐसा कौन सा फंडामेंटल राइट है जिसका आप डेली उसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं? ma'am, it is Article 19, freedom of speech and expression. So that is the right that we use in daily use. आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट कौन सा है? Ma'am, according to me, the most important fundamental right is Article 21, right to life and privacy, because it is very innate to our life, such as we can see in the judicial case laws like right of food security, right to livelihood, right of dignified imprisonment. So मैम ये कुछ राइट्स हैं जो हमारी लाइफ से काफ़ी क्लोजली इंटरलिंक्ड है, तो इसलिए मैम आर्टिकल 21 में मानता हूँ कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, जैसा कि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, हम ऐसा कहते हैं, ठीक है, इट इज़ बिकॉज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। लेकिन ऐसा कौन सा एक चेंज लगता है आपको कि हमारे संविधान में होना चाहिए? मैम वैसे अगर हम देखें तो हमारे पास में एक कॉन्स्टिट्यूशन मैम सबसे सुप्रीम लॉ होता है किसी भी देश का। और वैसे हम देखें कि 1973 में जो केशवानंद भारती जजमेंट था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि जो बेसिक फीचर्स है कॉन्स्टिट्यूशन के वो अनअमेंडेबल हैं और वो नल एंड वॉइड हो जाएंगे। पर मैम जहाँ तक बात रहती है कि कॉन्स्टिट्यूशन के चेंज होने की, तो मुझे लगता है कि मैम कुछ DPSPs हैं। आपके हिसाब से क्या चेंज होना चाहिए? हाँ, वही मैं बता रहा हूँ कि मेरे हिसाब से देर आर सम ऑफ द DPSPs that we can include in fundamental rights. So ma'am, that is the change which I will suggest to our lawmakers and parliamentarians. Name? विपुल पांडे। ओके, आज 26 नवंबर है, सो डू यू नो आज क्या स्पेशल, क्या इम्पोर्टेंट है? दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये जो डेट था कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हमारे देश के बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा 26/11 का अटैक भी आज ही के दिन हुआ था। ओके, तो हम अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो 26 जनवरी और 26 नवंबर में क्या डिफरेंस है? बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन डे और रिपब्लिक डे में क्या डिफरेंस है? देखिए 26 नवंबर को आपका कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो गया था, लेकिन उसको ऐसे लागू करने के लिए हमें एक स्पेशल डेट चाहिए थी, क्योंकि ऐसे किसी दिन में लागू नहीं कर सकते थे। तो इसलिए हमको एक ऐसा दिन चाहिए था जो कि हिस्टोरिकली जिसका कुछ हो, मायने हो, इसलिए 26 जनवरी को वो दिन चुना गया। लेकिन आज के दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो चुका था। ओके, 5 फंडामेंटल राइट्स हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला तो यही जो आपको राइट टू फ्रीडम है, जिसके लिए मैं बोल पा रहा हूँ यहाँ पे। उसके अलावा राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू लिव है, राइट टू फॉलो योर रिलीजन है, और सबसे मेन चीज़ कि भाई आपके अगर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, हाँ, ये यही 5। मैं बोलने वाला था कि अगर आपके इनमें से कोई भी फंडामेंटल राइट्स का हनन हो तो सबसे इंपॉर्टेंट राइट टू फंडामेंटल रेमेडीज़ जो कि आर्टिकल 32 आपको देता है, तो आप किसी भी कोर्ट में इसके खिलाफ अपनी अपील कर सकते हैं। ओके, आपका पर्सनल फेवरेट फंडामेंटल राइट कौन सा है? जिसकी वजह से मैं भी बोल पा रहा हूँ, इसका मतलब राइट टू फ्रीडम, क्योंकि बोलने की तो मनुष्य की आदत ही है कि भाई जितना मर्जी उतने इट्स नॉट राइट टू फ्रीडम, इट्स फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हाँ, फ्रीडम टू स्पीच, वही मतलब इसी के अंदर आता है। आप 19 से 21 देखेंगे तो अलग अलग टाइप्स के आते हैं, तो इसी के अंदर आपको बहुत सारी फ्रीडम मिलती है। ओके, अगर हम अपने संविधान की बात करें तो संविधान में ऐसी कौन सी एक चीज़ है या ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि बेस्ट है?
बहुत सारी चीज़ें संविधान में बेस्ट है। मेरी जो वन ऑफ द पर्सनल फेवरेट चीज़ है वो ये है कि आपके साथ आपके देश का संविधान कभी गलत नहीं होने देगा। बहुत लोग कहते हैं कि भाई आपको जस्टिस नहीं मिल सकता, जस्टिस नहीं मिल सकता, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि सबसे ज़्यादा निचोड़, जैसे सिर्फ ये हमारे देश का संविधान नहीं है, देश के तमाम जितने भी बड़ी बड़ी डेमोक्रेसीज़ हैं उनमें से जो निचोड़ निकल के आता है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, इसलिए इसके इतने ज़्यादा मायने हो जाते हैं। ओके, डू यू नो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उनका एक थॉट या उनकी एक बात जो आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती हो? भीमराव अम्बेडकर वैसे तो बहुत सारी उनकी बातें हैं, जैसे कि उन्होंने जो रिजर्वेशन वाला जितना भी किया था, जो नीचे के लोग थे उनको उठाने के लिए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उनकी मुझे ये लगी जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ये कि वो हमेशा कहते हैं कि आपका जो रिलीजन है, आपका जो धर्म है, वो चीज़ आपकी जो स्टेट है, जो आपकी गवर्नमेंट है, उससे हमेशा अलग होनी चाहिए, तभी एक स्टेट प्रॉपर ढंग से वर्क कर पाएगा। ओके, जब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की, तो मोस्टली लोग कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में अवेयर हैं, बट अगर फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात आती है, सो पीपल डोंट रियली वांट टू टॉक अबाउट इट। लोगों को ज़्यादा पता ही नहीं है इनफैक्ट। तो डू यू थिंक जो हमारा यूथ है, जो हमारा युवा है, अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को अच्छे से फॉलो कर रहा है? देखिए, जब आप फिलॉसफी पढ़ते हैं तो फिलॉसफी में एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली यही कहता है कि आपके कुछ राइट्स हैं जो कि आप कर्टेल कर देते हैं, जो कि आप एक स्टेट को दे देते हैं, बदले में आपको कुछ राइट्स मिलते हैं, लेकिन जब वो आपको राइट्स मिल रहे हैं उससे पहले आपकी जिम्मेदारी है कि उन ड्यूटीज़ को निभाएं। इसका मतलब आपके जो ड्यूटीज़ है जब आप उन्हें फुलफिल करेंगे तभी आपको बदले में स्टेट वो राइट्स प्रोवाइड करेगा। तो दोनों एक हम जिसे कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, इसका नाम ही सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। तो दोनों की तरफ से स्टेट अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, तो बतौर नागरिक हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी अपने जो राइट्स हैं, अपनी जो ड्यूटीज़ हैं, उन ड्यूटीज़ को फुलफिल करें। तभी क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथों से ताली बजती है, तो दोनों को अपनी ड्यूटीज़ को फुलफिल करना पड़ेगा। विनायक। Okay, so Vinayak, do you know the difference between 26 November and 26 January? Basically, the difference between Constitution Day and Republic Day. Yeah, of course I know. So basically 26 November is the date when the constitution was ready, but it was implemented of course on the 26th Jan to commemorate the first Independence Day, which the Congress celebrated when India, like not in 1947 of course, but earlier than that. And yeah, these two are different days. Republic Day is a different day and Constitution Day is a different day. Yeah. एक चीज़ जो आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सबसे ज़्यादा पसंद है? देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वैसे तो वन ऑफ द वर्ल्ड्स, मतलब सबसे रिस्पेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन मान लीजिए, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। पर देखिए, मेरे ख्याल से जो चीज़ है जो हमारे संविधान को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे महान बनाती है, वो चीज़ है कि किस तरह से हमने इक्वालिटी को एक पूरा पैराडाइम दिया हुआ है। जो इक्वालिटी के कई सारे मायने हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर समेटे हुए हैं, मेरे ख्याल से वह सबसे महान है। और वह इक्वालिटी की भावना ही मेरे ख्याल से आज के समय में देश में बहुत ज़रूरी भी है, और वही है मेरे ख्याल से हमारे संविधान की सबसे अच्छी बात और सबसे ख़ास बात। ओके, एक चेंज जो आपको लगता है आपके हिसाब से जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लाया जाना चाहिए? देखिए, आज के समय में भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम देखते हैं कुछ ऐसे एक्ट्स हैं या कुछ ऐसे लॉज हैं जो इनैक्ट हो चुके हैं, और वो बहुत ही पुराने हैं और शायद आज की स्थिति को स्पष्ट रूप से दिखाते नहीं हैं, और मैं ये भी कहूँगा कि डिस्क्रिमिनेटरी हैं। जैसे कि आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट देख लीजिए, बहुत डिस्क्रिमिनेटरी एक्ट है। किस तरह वो आपकी जुडिशरी को, जो आपको जुडिशरी की जाने तक की पावर है, उसको भी वो लिमिट कर देता है। तो ऐसे लॉज और जो कुछ कॉलोनियल इंफ्रास्ट्रक्चर के लॉ जो हमने उठा लिए हैं, बीएनएस में काफ़ी सुधार हुआ है, पर मेरे ख्याल से उसके और ज़रूरत है। और भारत को एक ऐसा संविधान चाहिए जो सच में भारतीय हो और भारतीय दिखे और भारतीय लगे। यही मैं कहना चाहूँगा। ओके, जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, सबसे पहले तो आप 5 फंडामेंटल राइट्स लिस्ट कर दीजिए, और उसके बाद आपका फेवरेट कौन सा है और क्यों है वो बता दीजिए। देखिए, राइट टू इक्वालिटी हो गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, फिर फ्रीडम अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हो गया, राइट टू जुडिशियल कोर्ट्स लाइक जुडिशरी में जाना, उसकी आज़ादी हो गया, एंड ऑफ कोर्स राइट टू स्पीच मैं पहले ही लिस्ट कर चुका हूँ, और राइट टू लिबर्टी है, राइट टू लाइफ है, और अब तो खैर इसका स्कोप और भी एक्सपैंड कर दिया है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स ने। और देखिए, आपने क्वेश्चन जैसे पूछा कि राइट्स के साथ साथ ड्यूटीज़ को जो आपने ऐड करा, मेरे ख्याल से ड्यूटीज़ एक
एक पूरी कंट्री के लिए, उसके लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि नहीं, मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि आपका फेवरेट फंडामेंटल राइट कौन सा है? फेवरेट फंडामेंटल राइट ऑफ कोर्स राइट टू लिबर्टी ही होगा, क्योंकि सबको स्वतंत्र रहने का अधिकार होना चाहिए। और लिबर्टी मेरे ख्याल से एक ऐसा नोशन है जो सबको मेरे ख्याल से लिबर्टी मिलनी चाहिए पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में, और इसीलिए मेरे ख्याल से मेरा फेवरेट फंडामेंटल राइट है। ओके, बाबा साहेब का एक थॉट, जो उन्होंने ऐसा कुछ किया हो जो आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है? देखिए, बाबा साहेब अम्बेडकर ने काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें करी जो शोषित समाज के लिए, शायद अपलिफ्टमेंट के लिए काफ़ी ज़रूरी थी, और उन्होंने ऐसे कई स्टेप उठाए। पर देखिए, जो सबसे उनका मेन पॉइंट था, उनके जो शायद काफ़ी कम देखा जाता है आज के समय में, वो है कि उन्होंने कभी भी इंडियन सेक्ट को, इंडियन यूनियन को डिग्रेड करने की कोशिश नहीं करी। उन्होंने हिंदू समाज में शायद बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी जो गलत थी, लेकिन वो जब कन्वर्ट भी हुए तो वो एक इंडियन रिलीजन, इंडियन सेक्ट के रिलीजन बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हुए। इससे हमें पता लगता है कि किस तरह से एक लार्जर भारत की आइडेंटिटी से वो कभी भी शोषित महसूस नहीं करते थे, कभी भी वंचित महसूस नहीं करते थे। तो हमें एक भारत राष्ट्र की ग्रेटर आइडियलॉग को समझना होगा, और किस प्रकार से अम्बेडकर जी भी उसके सारथी थे उसे समझना होगा। और देशभक्ति की भावना, वो तो खैर हमारे सारे फ्रीडम फाइटर्स में थी ही, अम्बेडकर जी भी उसमें से थे, और वही भावना मेरे ख्याल से उनकी सबसे महान है, और वह मेरे को प्रेरित भी करती है। अंकित कुमार। अंकित, आपको पता है 26 जनवरी और 26 नवंबर में डिफरेंस क्या है? जी, 26 नवंबर को हमारा संविधान पूरी तरह बनकर आ गया था, लेकिन 26 जनवरी को उसे लागू किया गया। इसके पीछे कारण बताया जाता है कि 26 जनवरी 1930 को जवाहरलाल नेहरू या मोतीलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर यह घोषणा कर दिया था कि इसी दिन हमारा देश आज़ाद होगा, और इसलिए 26 नवंबर 1949 को संविधान बनने के बावजूद 2 महीने वेट करके 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। अच्छा, हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। आपके हिसाब से ऐसा कौन सा अधिकार है, ऐसा कौन सा राइट है जो सबसे आपको लगता है ज़्यादा ज़रूरी है हर हिंदुस्तानी के लिए, हर कोई जो इस देश में रह रहा है उसके लिए? वैसे तो संविधान के सभी फंडामेंटल राइट अच्छे हैं, लेकिन सबसे अच्छा है आर्टिकल 14 जो हमें समानता का अधिकार देता है। क्योंकि हमारे देश में अगर हम प्राचीन देखें और अभी भी अगर भारत के गांव लेवल पर देखें तो ज़्यादातर असमानता वहाँ काफ़ी अधिक है। अमीर गरीबी हो, जाति के या धर्म के आधार पर काफ़ी विविधता है, और उसमें काफ़ी टकराव भी होता है। तो ये जो समानता का अधिकार है आर्टिकल 14, ये हमें सबको बराबर रखने का अधिकार देता है, तो मेरे हिसाब से ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, देखिए, जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो वहीं कुछ जिम्मेदारियां भी है जो हमें एक नागरिक होने के नाते उठानी चाहिए। आपको लगता है जो हमारे देश का युवा है वो अपनी उन जिम्मेदारियों को देश के प्रति पूरा कर रहा है, हमारे संविधान के प्रति पूरा कर रहा है? सच बताएं तो जिम्मेदारियों को पूरा अगर 100% है तो उसमें से 60% कर रहा है, 40% नहीं कर रहा है। लाइक अगर हम देखें, अगर हम सोशल इन्वायरमेंट को ही देखें, जो अभी दिल्ली में सबसे बड़ा पॉल्यूशन का मुद्दा उठ रहा है, तो इसमें सरकार का उतना ही जिम्मेदार है सरकार इसके लिए जितना पब्लिक है। पब्लिक भी इसके लिए बहुत जिम्मेदार है। का नाम? नकुल। ओके, नकुल, आपको पता है 26 नवंबर को क्या ऐसा स्पेशल है, क्यों हम 26 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं? कि इस दिन जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो अडॉप्ट हुआ था ऑफिशियली, इट वाज एंडेड, मतलब बनना ख़त्म हुआ था, एंड इट वाज अडॉप्टेड, एंड देन 26 जनवरी जो हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं उस दिन इट केम इनटू इफेक्ट फॉर द कंट्री। ओके, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, हमारे संविधान के बारे में आपको कौन सी एक चीज़ है, एक चीज़ जो उसमें मेंशन है आपको सबसे अच्छी लगती हो? जो हमारे 5 फंडामेंटल राइट्स हैं वो ऐसी चीज़ है कि लाइक वो हमारे पास एक ऐसी चीज़ है कि अगर पूरी दुनिया एक साइड हो और कोर्ट और हमारा एक फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा हो तो कोर्ट जो हमारी जुडिशरी है वो हमारा साइड लेगी फंडामेंटल राइट पे। सो वो एक ऐसी चीज़ है जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। आपका फेवरेट जो फंडामेंटल राइट है वो कौन सा है? राइट टू फ्रीडम होगा, बिकॉज लाइक वो अलग अलग फ्रीडम्स प्रोवाइड करता है, बी इट टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन और टू बी प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। सो राइट टू फ्रीडम वुड बी वन। Okay, so if you talk about the father of Indian Constitution, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, उनका एक थॉट, एक उनकी आइडियोलॉजी जो आपको बहुत इंस्पायर करती हो,
कि हाउ ही वाज इन फेवर ऑफ लाइक ही वांटेड टू अपलिफ्ट द अनटचेबल एंड द दलित्स, हाउ ही वाज इन फेवर ऑफ देम, एंड हाउ ही कॉल्ड वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच इज द लास्ट फंडामेंटल राइट. सो दीज आर द थॉट्स दैट आई एम इंस्पायर्ड. Okay, if we talk about fundamental rights के बारे में हम सब जानते हैं, but if we talk about fundamental duties, जिम्मेदारियां जो हमारी होती है हमारे देश के प्रति, हमारे संविधान के प्रति, as humans, do you think people are following that, specifically youth is following that? I guess there is a divided opinion on this. There is some part of youth which is very diligently following it, but there is some part of the youth which are not following as well. So we have to make sure that the entire youth of the country, as India it's a youth country and it's in its development stage, so the entire youth should practice the fundamental duties as well towards the country. तो अभी आप सुन रहे थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को. हमने उनसे तमाम सवाल पूछे हमारी फंडामेंटल राइट्स के बारे में, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में. बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर क्या वो थॉट जो उन्हें सबसे ज़्यादा इंस्पायर करता है, और जो स्टूडेंट्स ने जवाब दिए बहुत बेहतरीन थे. और युवा को सबसे बड़ी बात यह है कि युवा को पता है हमारे संविधान के बारे में. तो अभी आपने जैसा कि सुना कि काफ़ी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी स्टूडेंट्स के पास है. तो फिलहाल के लिए इतना ही. मिलेंगे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए जागरण जोश.